Let's solve the question, modify the matrix. In the question, you'll be given with m cross n integer matrix, and it's a zero index matrix. And you have to return an answer which is equals to matrix, but all the minus one elements are replaced with the maximum element in each respective column. So, it's respective. Let's solve the question, modify the matrix. In the question, you'll be given with m cross an integer matrix which is a zero index, and you have to return an answer such that all the elements of matrix should present in the answer, but the minus one element should replace with the maximum element in its respective column. So what we can do is we can first store all the maximum values for each column. So this call is representing to store the maximum element for each respective column. So call of I is saying that it is storing the maximum element of the ith column. After that, I have traversed through the matrix and checked that if the element at the ij position is minus 1, then I have replaced this element with its respective column's maximum element. That's it. And after I have returned the matrix. The simple question, just the brute force will also work because the value for n and m is up to 50. So you can also search if the element at ij position is minus 1, then you can do a traversal for that respective column, that is jth column. Just do a traversal in the jth column and you will get the maximum element and then just place it over here. So if you are doing a brute force one, that will be in cube and which is also expected solution. So that's it. This is the third question in which you'll be given with zero index string array words having length n, and it is containing zero index strings. And you can perform the following operation any number of times in which you'll be choosing ij xy, where ij are the indexes of two words and xy are the index of the characters that you'll be swapping out. And you can swap the characters at the word ix with word jy, and I and j may be equal during an operation. It means you can choose two same strings also, and you have to return maximum number of palindromes words can contain after performing some operation. So return the maximum number of palindromes that you can form. So that's it. Let me make it more clear. क्वेश्चन में बस एक वर्ड्स गिवन होगा जिसका लेंथ n है, और इसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे या कोई भी स्ट्रिंग है, एक हम लोग दो स्ट्रिंग को चूज़ कर सकते हैं, लाइक द ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म, चूज टू स्ट्रिंग एंड स्वैप एनी टू कैरेक्टर ऑफ दो स्ट्रिंग्स, एनी टू कैरेक्टर्स. और ये दो स्ट्रिंग सेम भी हो सकते हैं, लाइक यू कैन स्वैप द कैरेक्टर विद इन द स्ट्रिंग इटसेल्फ, और दो डिफरेंट स्ट्रिंग के भी कैरेक्टर्स को हम लोग स्वैप कर सकते हैं. तो लाइक बेसिकली वी कैन रीअरेंज ऑल द कैरेक्टर्स, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर वो खुद के कैरेक्टर्स के साथ भी स्वैप हो सकता है और डिफरेंट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के साथ भी स्वैप हो सकता है. तो इट मीन्स वी कैन रीअरेंज ऑल दी कैरेक्टर्स. अब अगर तुम्हारे पास कोई भी कैरेक्टर्स गिवन है, लाइक ए 2 बार है, बी 5 बार है, सी अप टू जेड, तो अब इन सारे कैरेक्टर्स से तुम्हें पैलिंड्रोम्स फॉर्म करने हैं. लाइक लेंथ गिवन है, इसका 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि वर्ड सारे के स्ट्रिंग के लेंथ है. तो तुम्हें इस लेंथ का पैलिंड्रोम्स फॉर्म करना है. तो पैलिंड्रोम फॉर्म करने के दो कंडीशन होते हैं कि ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम फॉर्म करना है, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम. तो ऑड अकरिंग कैरेक्टर एक होगा, कैरेक्टर एक होगा, और सारे इवन अकरिंग कैरेक्टर होंगे. और इवन लेंथ का पैलिंड्रोम फॉर्म करना है तो सारे इवन अकरिंग कैरेक्टर होंगे. जैसे ए बी हो गया, ए देखो एक ही ऑड लेंथ का ऑड अकरिंग कैरेक्टर है. यहाँ पे इफ़ इवन लेंथ का होगा तो सारे इवनली प्रेजेंट होंगे, सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो इवन अकरिंग कैरेक्टर से ओनली. तो हम लोगों के चेक करना है जो भी कैरेक्टर्स है इसमें से ऑड अकरिंग कैरेक्टर कौन कौन है, तो वो ऑड लेंथ स्ट्रिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पैलिंड्रोम होने के लिए. बट अगर वो इवन लेंथ वाले में कंट्रीब्यूट करेंगे जो ऑड अकरिंग कैरेक्टर, तो पैलिंड्रोम नहीं बनने देंगे उस स्ट्रिंग को. तो जो ऑड अकरिंग कैरेक्टर है वो बस हम लोग ऑड लेंथ वाले में रख सकते हैं और किसी में नहीं रख सकते. तो अब कितने ऑड अकरिंग कैरेक्टर हैं, लेट्स से कि ऑड अकरिंग कैरेक्टर 4 है
और जो ऑड लेंथ वाला स्ट्रिंग है वो भी 3 है। तो यहाँ पे लेट्स से ऑड अकरिंग कैरेक्टर जो है ABC है, तो हम लोग मिड में इसे यहाँ पे A रख देंगे, यहाँ पे B रख देंगे, यहाँ C रख देंगे। अब एक और जो बचा D, ये इवन लेंथ का है। अब उस D को अगर यहाँ पे रख देंगे हम लोग तो ये तो पैलिंड्रोम नहीं बनने देगा। तो एक ऑड अकरिंग कैरेक्टर की वजह से हम लोग एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम नहीं बना सकते, इसको नहीं बना सकते। तो हम लोग को चेक करना है कि ऑड अकरिंग कैरेक्टर्स और ऑड लेंथ वाले स्ट्रिंग कितने हैं, बस ये दोनों वैल्यू मैटर करते हैं। अब ऑड अकरिंग कैरेक्टर इज सेम एज द ऑड लेंथ स्ट्रिंग। तो हम लोगों का लेट्स से यहाँ पे 3 है, ये भी 3 लेंथ का है, ये भी 3 लेंथ का है, और हम लोगों के पास जो ऑड अकरेंस है लेट्स से ABC है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो हम A को यहाँ से चेट कर सकते हैं। अब A का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 2। अब B को यहाँ से चेट कर देंगे तो B का फ्रीक्वेंसी 2। अब C को यहाँ से चेट कर देंगे तो C का फ्रीक्वेंसी 2। अब ये तो इवन है, तो इवन अकरिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो इवन लेंथ पैलिंड्रोम में भी कंट्रीब्यूट करते हैं पैलिंड्रोम बनने के लिए, और ऑड लेंथ पैलिंड्रोम में भी इवन लेंथ वाले सही होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग कहीं पे भी A रख देंगे, B रख देंगे, C रख देंगे। तो हम लोगों को तो इवन लेंथ वाले जो इवन अकरिंग कैरेक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चाहिए हम लोगों को। तो अब दोनों अगर सेम है तो हम लोग सारे कैरेक्टर्स को लाइक ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल स्ट्रिंग्स कैन बी पैलिंड्रोम नाउ। तो जो भी वर्ड्स का साइज है वो रिटर्न कर दो, क्योंकि जैसे यहाँ पे 3 थे तो हम लोग तीनों में एक प्लेस कर दिए और सबके अब इवन हो गए फ्रीक्वेंसी। तो अब इवन हो गया तो हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में प्लेस कर सकते हैं। तो अगर दोनों सेम है तो रिटर्न n सिंपली, n इज़ दी वर्ड्स लेंथ। नाउ इफ़ द ऑड अकरेंस जो है कैरेक्टर्स के वो लेसर देन है ऑड लेंथ स्ट्रिंग। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें ये ऑड लेंथ वाला स्ट्रिंग है, एक ऑड है इसका लेंथ, इसका भी ऑड है, इसका भी ऑड है, और हम लोग के पास 2 ही कैरेक्टर है जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑड है। यहाँ पे कुछ इवन लेंथ के होंगे और जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनके इवन फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये A यहाँ पे प्लेस हो गया, खुद को इवन कर लेगा। अब B यहाँ पे प्लेस करके खुद को इवन कर लेगा। अब ये 2 स्ट्रिंग्स भी इवन लेंथ के हो गए। अब जो एक स्ट्रिंग बचा वो ऑड लेंथ का है, और सारे कैरेक्टर्स जो है वो अब इवन लेंथ के हैं, लाइक इवन अकरिंग कैरेक्टर्स है अब मेरे पास, और एक ऑड है। अब ऑड को पैलिंड्रोम बनाने के लिए एक ऑड अकरिंग कैरेक्टर तो चाहिए होता है। अगर हम ये जो सारे कैरेक्टर्स इवन है उसमें से एक कैरेक्टर यहाँ प्लेस कर दिए तो अब एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी अब ऑड हो गया, क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स था, तो एक माइनस करेंगे तो एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी ऑड हो जाएगा। तो अब ये ऑड वाले फ्रीक्वेंसी के जो कैरेक्टर हैं वो तो बस ऑड लेंथ के स्ट्रिंग में ही पैलिंड्रोम बना सकते हैं, बट इवन लेंथ में पैलिंड्रोम नहीं बना सकते। तो अब मेरे पास एक कैरेक्टर है विथ ऑड फ्रीक्वेंसी, और अब जो है सारे इवन लेंथ के स्ट्रिंग बच गए। तो एक स्ट्रिंग को मेरे को पैलिंड्रोम नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑड अकरिंग कैरेक्टर है वो कोई एक स्ट्रिंग को ख़राब कर रहा होगा टू बिकम ए पैलिंड्रोम। तो जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ ऑड अकरिंग कैरेक्टर, दिस इज दिस डिफरेंस, ऑड लेंथ माइनस ऑड अकरिंग कैरेक्टर माइनस ऑड अकरिंग कैरेक्टर। ये अगर इवन है तो हम लोग सारे को कर सकते हैं कन्वर्ट पैलिंड्रोम में। अगर ये ऑड है, जैसे यहाँ पे ऑड था, तो हम लोग n-1 को लाइक एक स्ट्रिंग को ख़राब कर रहे होंगे, वो ऑड अकरिंग वाले जो कैरेक्टर है यहाँ पे डाल देंगे। बट अगर सारे इक्वल होते हैं, जैसे कि इवन होते हैं, यहाँ पे भी ऑड होता, तो अभी ऑड इवन है और मेरे पास 2 ही हैं ऑड अकरिंग, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो अब जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑड अकरिंग और ऑड लेंथ के स्ट्रिंग में, दैट इज़ 2, जो कि इवन है। अब अगर इवन है तो कोई भी एक इवन कैरेक्टर लेंगे, उसका एक कैरेक्टर को यहाँ प्लेस करेंगे और एक कैरेक्टर को यहाँ प्लेस करेंगे, तो अभी भी सारे कैरेक्टर्स जो है इवन हो गए। लाइक इफ़ ऑड अकरिंग स्ट्रिंग जो
लेफ्ट होगा लाइक द एक्स्ट्रा इज इवन, तो कोई भी इवन कैरेक्टर को उठाओ और उन दोनों स्ट्रिंग में प्लेस कर दो। लाइक इसमें एक प्लेस करेंगे तो अभी जो लेंथ ऑड अकरिंग कैरेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी है अभी इवन था, एक प्लेस के यहाँ पे ऑड हो गया, फिर एक प्लेस के यहाँ पे अब इवन हो गया। अब सारे इवन अकरिंग कैरेक्टर्स है एंड इवन लेंथ स्ट्रिंग्स है, तो अब हम सारे को कन्वर्ट कर सकते हैं इन पैलिंड्रोम। तो ये एक्स्ट्रा पे डिपेंड कर रहा है, इफ़ ऑड है तो n-1 होगा, इफ़ इवन है तो n होगा, लाइक n इज़ द लेंथ ऑफ ऑड। नाउ इफ़ ऑड अकरिंग कैरेक्टर जो है दैट इज़ ग्रेटर देन ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स, यहाँ पे ए लेट्स से ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये सारे जो है इवन है, इवन। अब जो ऑड अकरिंग कैरेक्टर है लेट्स से ए का फ्रीक्वेंसी है 5, बी का भी 5 है, सी का भी 5 है, 3 ऑड अकरिंग कैरेक्टर है बट 2 ही ऑड लेंथ वाले जो है स्ट्रिंग है। तो जो एक ए को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, अब सब इवन हो गए, एक बी को यहाँ प्लेस कर देंगे, अब इवन चाहिए। अब ये जो सी बचा, अब सी को क्या करें, अब सी बस ऑड लेंथ के स्ट्रिंग को ही पैलिंड्रोम कर सकता है, ये इवन लेंथ के स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑड है। तो अभी जो रिमेनिंग बचे जैसे डिफरेंस बिटवीन द ऑड अकरिंग कैरेक्टर एंड द ऑड लेंथ, अब ये वाले कैरेक्टर का जो भी फ्रीक्वेंसी है लाइक द ऑड अकरिंग कैरेक्टर, लाइक मेरे पास जे का फ्रीक्वेंसी 7 है, के का फ्रीक्वेंसी 5 है, एल का अगेन 9 है, तो ये सारे कैरेक्टर्स में से हम लोग एक एक हटा देंगे, लाइक इससे हम लोग एक जे ले लेंगे, इससे एक के ले लेंगे, इससे एक एल ले लेंगे। अब ये सारे कैरेक्टर्स को तो मेरे को हटाना है क्योंकि अभी जो मेरे पास सारे जो लेंथ वाले स्ट्रिंग्स है वो इवन है, तो मेरे को तो ऑड लेंथ वाले सब को हटाना है। तो इसमें से अगर एक कैरेक्टर रिमूव कर देंगे तो जे के एल अब इवन हो गया। तो ये लोग तो अब किसी भी स्ट्रिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू बिकम अ पैलिंड्रोम, बट जो अब ये 1 फ्रीक्वेंसी वाले सब बच गए दैट इज एल का जे के, ये जो अब 1 फ्रीक्वेंसी वाले बच गए अब इनको कहीं तो रखना पड़ेगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे वो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग में हम रख दें, तो जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग बच जाएंगे वो हम लोगों को पैलिंड्रोम फॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये कैसे निकालेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में हम ये जो भी अब जो ये कैरेक्टर्स है ऑड अकरिंग कैरेक्टर्स इनको रख दें। तो अगर हम लोग एक एरे लें जिसमें कि सारे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स को स्टोर करें एंड लेंथ को स्टोर करें सारे स्ट्रिंग के, उसको शॉर्ट कर दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो जो हाईएस्ट लेंथ होगा वो स्टार्टिंग में होगा और ये जो ऑड है हम इस सब को इसमें प्लेस कर देंगे, अगर बच गए तो नेक्स्ट वाले में प्लेस करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में प्लेस करेंगे अंटिल द ऑड इज ग्रेटर देन 0, और फिर जो भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है दैट्स आर पैलिंड्रोम। सो ये रिमेनिंग निकालना है और कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में हम उसको रख सकते हैं। तो जो बचे वाले कैरेक्टर्स हो गए वो इवन अकरिंग है और अभी मेरे पास इवन लेंथ के सारे स्ट्रिंग्स हैं, अब उनमें तो ये इजीली फिट हो सकते हैं टू बिकम पैलिंड्रोम्स, तो ये रिमेनिंग पे रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स इट। सो इस कोड में फर्स्ट हम लोग एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लिए टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इन द वर्ड सारे। अब उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया एंड ये ऑड लेंथ जो स्टोर करेगा द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स विच आर ऑड, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विथ ऑड लेंथ। इफ़ जो लेंथ ऑड है स्ट्रिंग का तो हम लोग ये ऑड लेंथ को इंक्रीज कर देंगे और ये एरे में m-1 पुश कर रहे हैं, इसका लॉजिक बताएंगे बाद में। और इफ़ वो इवन है तो डायरेक्टली बस m पुश करे, दैट इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एरे में, और हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे में सारे कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लिए। अब इस एरो को शॉर्ट कर रहे हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड आफ्टर दैट ऑड अकरिंग कैरेक्टर्स कितने हैं वो निकाले जो कि ऑड में है। अब ये ऑड अकरिंग कैरेक्टर इज इक्वल्स टू द ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स, तो सिंपली n होगा क्योंकि सारे ऑड अकरिंग कैरेक्टर ईच ऑड लेंथ स्ट्रिंग में जाके फिट हो सकते हैं एंड मेक ऑल दी लेंथ्स एज इवन, उसके बाद फिर इवन अकरिंग कैरेक्टर्स बस बच जाएंगे और इवन लेंथ स्ट्रिंग्स, तो वो तो पैलिंड्रोम फॉर्म कर ही सकते हैं, इसलिए n। इफ ऑड अकरिंग कैरेक्टर इज लेस देन द ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स तो हम लोग रिमेनिंग निकालेंगे दैट इज द एक्स्ट्रा टर्म्स। अगर वो एक्स्ट्रा ऑड है तो n-1 करना है, अगर एक्स्ट्रा इवन है तो n ही रिटर्न करना है। उसके बाद इफ ऑड लेंथ इज ग्रेटर देन द ऑड अकरिंग कैरेक्टर तो कितने रिमेनिंग बचेंगे, दैट इज द ऑड अकरिंग कैरेक्टर माइनस ऑड लेंथ स्ट्रिंग। अब ये ऑड लेंथ स्ट्रिंग को जो हम लोग माइनस कर दें इट मीन्स सारे ऑड लेंथ वाले स्ट्रिंग में हम एक ऑड कैरेक्टर प्लेस कर दिए,
अब जो लेंथ हो गए सारे, ऑड लेंथ वाले भी इवन हो गए और इवन वाले तो इवन ही थे। अब मेरे पास बस इवन लेंथ बचे, और जो ऑड अकरिंग कैरेक्टर्स अब मेरे पास बचे वो रेम है। अब ये ऑड अकरिंग कैरेक्टर्स है और मेरे पास सारे इवन लेंथ है, इसलिए हम यहाँ पे m-1 पुश किए, क्योंकि इफ़ ये ऑड लेंथ इज इज लेसर देन द ऑड अकरिंग कैरेक्टर्स, इट मीन्स सारे ऑड लेंथ वाले स्ट्रिंग में हम एक ऑड अकरिंग कैरेक्टर प्लेस करके सबको इवन कर सकते हैं। तो इसलिए m-1, क्योंकि सब में एक कैरेक्टर प्लेस हो चुका है और वो लोग अब इवन हो चुके हैं, तो m-1 कैरेक्टर्स अब इसमें बचे, और इवन तो इवन है ही। तो मेरे पास सारे इवन लेंथ वाले स्ट्रिंग्स हैं, तो उसको शॉर्ट कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि जो बड़ा लेंथ का स्ट्रिंग है उसमें से हम लोग पहले ये रिमेनिंग को माइनस करने का ट्राई करें, क्योंकि हम लोग चेक करें कि कितने कम स्ट्रिंग्स में हम ये रिमेनिंग ऑड कैरेक्टर्स को प्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए फिर रिमेनिंग को डिक्रीज किए अंटिल इस रिमेनिंग इज ग्रेटर देन जीरो। फिर ये हम लोग आंसर को डिक्रीज किए ताकि जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स हम लोग के पास बच जाए आफ्टर प्लेसिंग दिस रेम ऑड अकरिंग कैरेक्टर्स, तो फिर वो आंसर होगा, फिर उसको रिटर्न कर देंगे। दैट्स वाई आंसर को इन से इनिशियलाइज किए, फिर जितने स्ट्रिंग्स पे हम लोग ये रेम को प्लेस करें वो सारे स्ट्रिंग को माइनस करें, क्योंकि रेम इज ऑड अकरिंग कैरेक्टर। अब हम लोग के पास सारी इवन लेंथ है, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग रख नहीं सकते ऑड अकरिंग कैरेक्टर, बस ऑड लेंथ स्ट्रिंग में ही रख सकते, बट हम लोग के पास है इवन लेंथ। सो दैट्स इट, आफ्टर वी आर रिटर्निंग द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।